चलिए, now the next chapter is the most important one, and that is absorption. So it is called absorption and overheads, which is actually overhead for many students, but very simple it is. You need to understand the crux of it. Basically there are two types of cost, you know that. One is variable, the other one is fixed, correct? Now what happens with the variable cost? Variable cost changes with the change in the quantity, but fixed cost आपकी तरह है, किसी चीज़ का असर नहीं होता. Increase करो, decrease करो, quantity कोई फर्क नहीं पड़ता, cost is same. So basically variable cost is a product cost and fixed cost is a period cost. Variable cost will be incurred only if there is a product, and fixed cost will be incurred even if there is no product, because it is incurred based on time. If I pay rent today, I have to pay rent next month, irrespective of what I'm producing, what I'm doing, whether the production is doubled, 50%, doesn't matter. Salary, if I'm paying today, I have to pay salary next month. I don't have a choice. लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, वेरिएबल का पर यूनिट हमेशा सेम होता है और फिक्स की हमेशा टोटल सेम होती है. You will not come across rent of 1500 per person. It will always be 2 lakh per month, no matter how many people are staying in that flat. मैंने जब क्लासरूम अगर रेंट पे लिए है तो आई वॉज नेवर टोल्ड के पर स्टूडेंट इतना दे दे. स्टूडेंट आए नहीं आए तो अंदर नाच गाना कर, पिक्चर देख, जो करना है कर, आईपीएल देख रात को बैठ के. 2 लाख रुपया पर मंथ देना पड़ेगा तो 2 लाख रुपया पर मंथ देना पड़ेगा मुझे. सो दे फोकस ऑन टोटल. बट वेरिएबल का कैसा होता है? सपोज 1 यूनिट कॉस्ट यू 100. सपोज 1 यूनिट कॉस्ट यू 100. हाउ मच इज total cost? 100. But how much is per unit then? Arey 100 only, no. What's wrong with you? 1 unit cost you 100. So total is also 100, per unit is also 100. What if I increase quantity from 1 to 100 units? So being a variable cost, it will also be 100 times, but my CPU is still, in fact CPU remains same. That's why total keeps on changing. Like for example, the stationery cost which I incur, not in your case, but in the main course, in the regular batch, I give a textbook. Suppose that textbook costs me 2000 per student. One student will cost me 2000, 10 students will cost me 20,000, 50 students will cost me 50 students into 2000, 1 lakh rupees. खर्चा तो होगा ही, बराबर? But the rent of the classroom will still remain 2 lakh per month, whether there is 1 student, 2 students, 10 students. So if I want to take a decision for variable cost, I will always prefer focusing on something that never changes, per unit. And for fixed, I will always focus on total. You should always focus on something that remains same. Those who change can't be trusted, right? The same thing is applicable in costing. For variable, focus on CPU. For fixed, focus on total. This will never change. This will never change. So in that case, sometimes we may come across a situation where there is a combination of 2 in 1. It's a semi-variable cost. Actually it is not a third type. Please understand this. Actually it is not a third type. It is just a combination of variable and fixed. It is partly variable, partly fixed. So if 30% is variable, balance 70% has to be fixed. If 60% is fixed, balance 40% has to be variable. But I cannot deal with it. I cannot rely on this figure because ये practically मेरे लिए impossible है. क्योंकि see, salary and commission. Salary will be on per month basis, commission will be on per unit basis. I cannot club them, actually. Salary is on per month basis, overtime is on per annum basis. I cannot club them. तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? Break up. Whenever you see characteristics of 2 in 1, you should always go for the breakup. जब एक में दोनों के गुण नजर आने लगे, ब्रेकअप कर लो. वेरिएबल को अलग करो, फिक्स को अलग करो. वेरिएबल को जैसे अलग करोगे, you can start focusing on CPU. और फिक्स अलग हो चुकी है तो यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन टोटल. सो मुझे अगर किसी ने बोल दिया कि सैलरी प्लस कमीशन इज 20,000, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मच इज द फिक्स पोर्शन आउट ऑफ इट. वो सैलरी अलग जाएगी
and how much is per unit portion of commission, that will be recorded separately. Ultimately, what does that mean? We are left with two types of cost structure only. One is variable, the other one is fixed, because even if there is a third one, we don't keep it as a third one, we split that into two parts again. पर कभी सी हर बार ब्रेकअप आसानी से हो ये जरूरी नहीं है. समटाइम्स वील हैव टू अंडरस्टैंड प्लान ब्रेकअप प्रॉपर्ली. जैसे ये एग्जांपल देख लो. In the first year I produced 1000 units, in the second year I produced 2000 units. So in the first year I incurred 10,000. In the second year I incurred 16,000. What kind of a cost is this? Variable or fixed? What kind of a cost is this? Variable or fixed? Fixed तो हो ही नहीं सकती because we can clearly see the change. पहले से 10-10 होती या 16-16 होती तो फिक्स कहते हैं, लेकिन we can clearly see the change in the cost. So it is not a fixed cost. And just because it is not a fixed cost, you can't say it is a variable. It can be a semi-variable cost also. Variable cost पहचानने का तरीका एकदम सेम है, एकदम सिंपल है. पर यूनिट सेम होना चाहिए. तो पहले का पर यूनिट 10 है, लेकिन दूसरे का 1000 cost you 10,000, so 10 per unit. 2000 cost you 16,000, so 8 per unit. इसका मतलब CPU भी सेम, टोटल भी सेम, तो फिर किस टाइप की कॉस्ट हुई है? So I am not interested in semi variable. I am not interested in knowing the total. I want to split this into variable and fixed. सिंपल बात है. 3 स्टेप में ब्रेकअप सिखाऊंगा. हाउ टू ब्रेकअप इन 3 स्टेप्स. आगे जाके काम आएगा, ध्यान से सुनना. हाउ मच इज राइज इन द कॉस्ट? 6,000. हाउ मच वॉज राइज इन द क्वांटिटी? So can I say 6 per unit is my variable cost? 1 unit cost me 6, that's why 1000 are costing me 6,000. 1 unit cost me 6, that's why 1000 are costing me 6,000. तो this is my variable cost. अच्छा, दोनों में से कोई एक क्वांटिटी बेस बना लो. 1000 को बेस बना लेते. 1000 इंटू 6,000. अच्छा, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6,000 होगी. आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 10,000 में से 6,000 गया तो बचा कितना? अब यार 10,000 में से वेरिएबल इज 6, दैट मीन्स बैलेंस इज 4. फिक्स्ड, कोई बात नहीं. दूसरा क्वांटिटी स्ट्रक्चर देख लो. 2000 इंटू 6 करो. 2000 इंटू 6 करोगे तो भी 12,000 आएगा. अब 16,000 टोटल है, उसमें से 12,000 अगर वेरिएबल है तो 4,000 ही तो फिक्स्ड आएगा. फिर फिक्स्ड है इसीलिए तो 4,000 सेम है. आपको समझा 3 स्टेप में ब्रेकअप? पहले क्या करना है आपको? डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन क्वांटिटी. फॉर्मूला बेस कभी जाना ही मत, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन हो सकता है. सिमिलर फॉर्मूला यू हैव इन मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर पीवी रेशियो. फिर तुम लोग एग्जाम में उल्टा करके आते हो, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, और कुछ भयंकर मिलता है. अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द आंसर रादर देन नोइंग फॉर्मूलाज. भाई 6,000 से कॉस्ट बढ़ चुकी है, क्वांटिटी 1000 से बढ़ चुकी है, मतलब मेरे लिए 6 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है. दोनों में से एक क्वांटिटी पे अप्लाई किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिली, जिसको डिवाइड कर लोगे जिसको माइनस कर लोगे टोटल से, तो जो बचेगी वो फिक्स्ड. करेक्ट? अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्योंकि जब मुझे किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी होती है, आई नीड कॉस्ट पर यूनिट. मुझे किसी भी प्रोडक्ट की जब सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी होगी, आई नीड कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट में व्हाट डू वी नीड? ओनली द कॉस्ट पर यूनिट डेटा इज इनफ फॉर अस. अरे यस और नो? Okay, only the cost per unit data is enough for us. So let me start with material. Suppose my material cost me 100 per unit, labor cost me 50 per unit, variable overhead cost me 50 per unit. Can I say 200 is the total cost? No, I can't say that. It is my total variable cost per unit. इसमें मुझे ऐड करना है फिक्स्ड, तब मिलेगी टोटल कॉस्ट, तब ऐड होगा प्रॉफिट, एंड देन आई विल गेट सेलिंग प्राइस. तो रुका क्यों तू? प्रॉब्लम ये है कि मेरी फिक्स कॉस्ट की हमेशा टोटल होगी मेरे पास. आई हैव एंटिसिपेटेड दैट माई कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट इज गोइंग टू बी 10 lakhs. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बजटेड कॉस्ट 10 लाख होगी. है नहीं, होगी, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज डिसाइडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर.
So the cost structure which I am considering has to be the budgeted one, estimated one. अब मुझे 10 लाख रुपया पूरे साल भर में खर्चा आएगा तो मुझे कस्टमर से 10 लाख रुपया वापस ले लेना चाहिए. मैं पूरे साल में 10 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट पे खर्च कर रहा हूं तो मुझे मेरा 10 लाख रुपया वापस चाहिए, हाँ या ना? अच्छा, कैसे? क्रिकेट खेलूंगा उनके साथ? नहीं, प्रोडक्ट्स बेच के. तो I have anticipated that I will be producing and selling to 10,000 units. So can I say I have only 10,000 units to get my 10 lakh rupees back? I have my 10,000 units to get my 10 lakh rupees back. That means every unit must give me 100 per unit. चल मैंने 100 ऐड कर दिया यहाँ पे, अब मुझे मिली 300 की टोटल कॉस्ट. चल 50% भी प्रॉफिट अगर बोला है ऑन कॉस्ट तो 450 विल बी द सेलिंग प्राइस. तो 450 विल बी द सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? तो 450 विल बी द सेलिंग प्राइस. अब मैंने किया क्या, जो कॉस्ट मेरी पर एनम थी उसको मैंने पर यूनिट कर दिया, सो दैट जैसे ही मेरा कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा, आई विल बी सेलिंग माई प्रोडक्ट फॉर 450. Customer will pay me 450 and that 450 will include 100 rupees towards fixed cost. So when all 10,000 units will be sold, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 will give me my 10 lakh rupees back. Of course, I will recover more than 10, I may recover less than 10, I may sell more than 10,000, I may sell less than 10,000. That is different, that is a different issue. पर 10 लाख रिकवर करने का ये प्लान है मेरे पास, वेर आई कन्वर्टेड माई पर एनम कॉस्ट इनटू पर यूनिट कॉस्ट, वेर आई कन्वर्टेड माई पीरियड कॉस्ट इनटू अ प्रोडक्ट कॉस्ट, वेर आई कन्वर्टेड माई फिक्स कॉस्ट इनटू, नहीं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. जादूगर थोड़ी हूं मैं. माई फिक्स कॉस्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बिकॉज इट इज नेवर अवेलेबल. वेरिएबल के लिए मुझे टेंशन ही नहीं है. मैं अभी अगर नया बैच अनाउंस कर दूं तो मुझे मालूम है 2,000 रुपया पर स्टूडेंट मुझे टेक्स्ट बुक का खर्चा आने वाला है. मुझे उसका टेंशन ही नहीं है. मुझे टेंशन क्या है कि भाई ये प्रीमाइसेस का रेंट मैं कैसे निकालूं. अब उसके लिए मुझे बजटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी. सो बेसिकली यू कन्वर्टेड पर एनम इनटू पर यूनिट एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. कन्वर्टिंग पर एनम इनटू per unit, period cost into product cost. Simple. Period cost into product cost. यहां तक समझा? तो फिर मेथड्स क्या क्या है, कैसे मिला एब्जॉर्प्शन रेट? यू टुक योर एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड फिगर एंड यू डिवाइडेड दैट बाय योर एक्सपेक्टेड क्वांटिटी स्ट्रक्चर. तो आपको पता चलता है पर यूनिट कितना रिकवर हो जाना चाहिए. Correct? In simple terms, it can also be called as recovery. कैसे? आपके जेब से पैसा कितना जाएगा? 10 लाख रुपए. वापस कितना आना चाहिए? 10 लाख रुपए. कितने यूनिट्स आपके पास? 10,000. So basically you are trying to recover 10 lakhs by selling 10,000 units. So you are trying to recover 100 rupees from each unit sold. You are trying to recover 100 rupees from each unit manufactured and sold. So absorption means recovery. क्योंकि फिक्स कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या पता है? फिक्स कॉस्ट में इट इज वेरिएबल में इट इज इनकर्ड एंड रिकवर्ड एट द सेम टाइम. आप फीस दोगे तो मैं टेक्स्ट बुक दूंगा. सिंपल है. तो मुझे फीस आती है तो उसमें 2,000 भी आ गया तो मेरा 2,000 कॉस्ट रिकवर हुआ, इनकर भी हुआ, रिकवर भी हुआ. पर फिक्स कॉस्ट का ऐसा नहीं है. आई एम पेइंग द रेंट व्हेन आई एम नॉट स्टार्टेड विद द एडमिशंस. तो आपको समझ में आ रहा है? इट इज इनकर्ड एट अ डिफरेंट टाइम. नाउ विद द अवेलेबल यूनिट्स आई हैव टू रिकवर इट. सो दिस इज योर रेट ऑफ रिकवरी. द रेट एट विच यू रिकवर योर फिक्स कॉस्ट इज एब्जॉर्प्शन रेट. समझा? पर अब ऐसा है कि जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हो, जैसे if you are manufacturing two different types of products, then you can't take the total of two products. जैसे मैंने A बनाया 1,000 units, मैंने B बनाया 2,000 units. I cannot take 1,000 plus 2,000 as 3,000 here, क्योंकि दो अलग यूनिट्स की क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती.
अरे 5 किलो टोमेटो खरीदा 100 रुपए के रेट से, 500 रुपये दिया होगा। 10 किलो पोटैटो खरीदा 20 रुपए के रेट से, 200 रुपये दिया होगा। टोटल खर्चा कितना है? 700। टोटल किलो कितना है? टोटल किलो कितना है? 15। तो 700 डिवाइडेड बाय 15 नहीं हो सकता। क्या मिलेगा आपको? कॉस्ट पर केजी ऑफ व्हाट? टोमेटो। एक टोमेटो, दूसरा पोटैटो, पहले तो 15 किलो हो ही नहीं सकता फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। हाँ, वजन उठाना है तो बोल सकते हो 15 किलो उठा के चल रहा हूं। यू कैन यूज 15 kgs फॉर कॉस्ट पर यूनिट बिकॉज दे आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो यहां पे डेफिनेशन काम आती है। फिक्स कॉस्ट क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट है पीरियड कॉस्ट? तो पीरियड को बेस बनाओ। कैसे? ए का 1 यूनिट 10 घंटा लेता है, बी का 1 यूनिट 5 घंटा लेता है। ए का 1 यूनिट 10 घंटा लेता है, बी का 1 यूनिट 5 घंटा लेता है। तो बेसिकली ए पे मेरा 10,000 घंटे का काम होगा, बी पे भी मेरा 10,000 घंटे का काम होगा। मतलब उस साल उस फैक्ट्री में 20,000 आवर्स विल बी यूटिलाइज्ड। तो 10 lakhs if it is going to be a fixed cost for the next whole year, 10 lakhs should be recovered on the basis of 20,000 hours. So 10 lakhs divided by 20,000 कितना आता है? 50 per hour? अरे हाँ या ना, 50 पर आवर आएगा। ए को 10 घंटे लगते हैं तो 500 विल बी चार्ज एज ओवरहेड्स ऑफ ए, और बी को अगर सिर्फ 5 घंटे लगते हैं तो 250 विल बी चार्ज एज ओवरहेड्स ऑफ ए। ऊपर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऐड कर लो, आपको नीचे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। अगेन योर per annum is converted into per unit, but this time what was the base? It was not output, it was number of hours. It was not output, it was number of hours. Number of hours क्यों? क्योंकि दो अलग यूनिट से, तो टाइम हैज टू बी द बेस। नो, यू आर allocating fixed cost, you are trying to recover fixed cost. Fixed cost is a period cost. So for period cost what do you need? Period. पर जब आप एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाते हो तो आप पीरियड के हिसाब से क्यों जा रहे हो? जब एक ही क्वांटिटी स्ट्रक्चर आपके पास है, सीधा पर यूनिट मिलेगा। इस बार हमने क्या किया? पर एनम से पर आर गए, पर आर से पर यूनिट आए, तो ये भी तो एब्जॉर्प्शन ही है। पर एनम टू पर यूनिट वाया पर आर, वाया डजंट मैटर, क्या आया? तो इट इज एब्जॉर्प्शन, बट द बेस इज चेंज्ड। व्हाई? बिकॉज वी वर डीलिंग विथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। जैसे सीए इंटर का फीस, सीए फाउंडेशन का फीस और सीए फाइनल का फीस हमेशा अलग होता है। सो सिंपल रीजन इज फाउंडेशन 400 घंटे में खत्म हो जाता है रे। 400 घंटा शुरू होते ही खत्म। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीए फाउंडेशन, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट, खत्म हो गया। इंटर चलता है 1000 घंटा, फाइनल चलता है 1400 आवर्स, तो ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज कौन करता है? फाइनल सीए। तो अकॉर्डिंगली फाइनल सीए स्टूडेंट्स विल हैव टू पे मोर टुवर्ड्स रेंट ऑल्सो, टुवर्ड्स रिसोर्सेज ऑल्सो। आपको समझ में आ रहा है? तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर नंबर ऑफ आवर्स एज अ बेस। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो यू शुड गो फॉर नंबर ऑफ आवर्स एज अ बेस। अदरवाइज एक ही टाइप का प्रोडक्ट अगर आप डील कर रहे हो तो यू बेटर गो फॉर पर यूनिट, बिकॉज डायरेक्टली आ जाएगा ना आंसर। अच्छा, आप चाहो तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट भी ले सकते हो अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या बोला, समझा? अगर आपको लगता है कि नहीं मटेरियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप उनको भी बेस बना सकते हो। कैसे? आपको लगता है साल भर में 10 लाख का ओवरहेड्स होगा, लेकिन मटेरियल 20 लाख का लगेगा, एंड यू आर डीलिंग विथ ज्वेलरी वेयर मैक्सिमम कॉस्ट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय मटेरियल कॉस्ट स्ट्रक्चर। नेम एनी ज्वेलरी, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, any jewelry, diamond, the maximum cost structure will be contributed by, so material can be the base. तो आप अंदाजा लगा लो कि भाई ठीक है 20 लाख रुपए का मटेरियल लगने वाला है, 10 लाख का ओवरहेड्स है, मतलब इन शॉर्ट योर ओवरहेड्स आर 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट।
तो जितनी भी प्रोडक्ट की मटेरियल कॉस्ट होगी 100, 150, 500, 600, उसका 50% मार दो, ओवरहेड्स मिल जाएगा नीचे। फिर आपके पास 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स है तो पांचों की मटेरियल पर यूनिट आपके पास अवेलेबल होगी। जस्ट सिंपली अप्लाई 50% ऑन ईच मटेरियल कॉस्ट, यू विल गेट ओवरहेड्स टू बी अब्सॉर्ब्ड। अगर आपको लगता है कि नहीं मटेरियल बेस नहीं है, लेबर बेस होना चाहिए, लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो ओके, तो लेबर कॉस्ट को बेस बनाओ। 20 लाख लेबर कॉस्ट है, 10 लाख ओवरहेड्स है, तो 50% ऑफ लेबर ले लिया करो। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग पर एनम इनटू पर यूनिट। एंड व्हाट आर द मेथड्स, हाउ मेनी मेथड्स, 6 पर यूनिट। आवर्स में 2 होते, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। अब उसका क्या है, if your machine, if your process, if your department is machine oriented, then you consider machine hours as a base. If not, जो hours तुम लोग ले रहे हो वो लेबर hours होंगे। हमको कैसे पता चलेगा, अबे देख के पता चलता है। मशीन hours 1,50,000, लेबर hours 70,000। अबे मशीन hours अगर इतने सिग्निफिकेंट है तो इट इज मशीन ओरिएंटेड प्रोसेस। लेकिन अगर इन्होंने बोला कि मशीन आवर्स आर 10,000, लेबर आवर्स आर 70,000, तो इट इज लेबर इंटेंसिव यूनिट। अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट। तो एक बेस हो सकता है आउटपुट, दूसरा बेस हो सकता है मशीन आवर्स, तीसरा बेस हो सकता है लेबर आवर्स, चौथा हो सकता है मटेरियल कॉस्ट, पांचवा हो सकता है लेबर कॉस्ट, और सिक्स्थ बेस कैन बी प्राइम कॉस्ट। अगर आपको ये भी डाउट है कि आपका मटेरियल लेबर दोनों वाइटल है, जैसे फैशन डिजाइनर्स होते हैं जिनका नेम इटसेल्फ इज अ ब्रांड, मनीष मल्होत्रा, ही इज अ ब्रांड, द नेम इज ब्रांड, सव्यसाची इज द ब्रांड, रोहित बाल इज द ब्रांड। तो अगर नेम मैटर करता है, दैट मीन्स द लेबर कॉस्ट विल बी वेरी हाई। वो भले ही अपकमिंग फैशन डिजाइनर्स को नौकरी पे रख के काम करवाता होगा, लेकिन वो चार्ज तो अपने नाम का पूरा करेगा। अब नेचुरली ऐसे बड़े लोगों का क्लाइंटेल भी बड़ा होता है, इनको नॉर्मल गारमेंट्स पसंद नहीं आते, तो इनका गारमेंट आएगा साउथ अफ्रीका से, उस पर स्टडेड रूबीज चाहिए तो वो आएंगे अलास्का से, फिर उसका थ्रेड जो है वो अच्छे क्वालिटी का चाहिए तो चाइना, अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो चाइना नहीं हो सकता, स्वीडन जाएंगे। ये भी चलता है, आर यू अवेयर ऑफ इट? इट्स अ फुल एक्सपेंस पेड ट्रिप। वो आपको लेके जाते हैं, आज किधर जा रहे हैं, आज स्वीडन जा रहे हैं, क्यों नहीं, वो शादी का जोड़ा है उसका फैब्रिक सिलेक्ट करना है। हम लोग भुलेश्वर भी जाते नहीं, हम लोग बोरीली का बोरीली में खरीद के खत्म कर देते हैं, राइट? ये लोग ट्रैवल करते हैं बिकॉज नेम एंड दैट मैटर्स। तो मटेरियल भी महंगा, लेबर भी महंगा, अबे इन शॉर्ट प्राइम कॉस्ट बेस बना लो। समझ में आ रहा है? पर एक चीज हमेशा याद रखना आपको, मटेरियल, लेबर और प्राइम कॉस्ट अगर बेस होगी तो ये लोग हमेशा एग्जाम में दे देंगे, आपको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर यूनिट लेके खत्म कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो पर यूनिट में ही है। अरे 2-2, 3-3 प्रोडक्ट्स होंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा ना, ए कितना, बी कितना, सी का कितना। जब एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूं तो सीधा पर यूनिट मार के खत्म कर दूंगा। अगर मशीन आवर्स लेबर आवर्स से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है तो आप मशीन आवर्स बेस बनाओ। अगर आपके लेबर आवर्स सिग्निफिकेंट है या फिर मशीन आवर्स क्वेश्चन में है ही नहीं, तब तो डाउट ही नहीं आएगा, यू विल हैव टू गो फॉर सिंपल, काम हो गया आपका। अब इससे होता क्या है, यू विल रिकवर द कॉस्ट। बट कभी ये सोचा है कि ये बजटेड ओवरहेड्स नाम का जो आप कंसिडर कर रहे हो हेड, बजटेड कॉस्ट नाम का जो हेड कंसिडर कर रहे हो, जो न्यूमरेटर कंसिडर कर रहे हो, वो आएगा कहां से? बिकॉज इफ यू आर डीलिंग विद 2 डिपार्टमेंट्स, if you are dealing with 2 departments A and B, A is machine oriented तो उसका overheads will be divided by machine hours, B is labor oriented तो उसके overheads will be divided by labor hours। but बाबू इधर total overheads भी तो चाहिए मुझे, I need overheads of A and B separately, पर मेरी एंट्री वैसे पास नहीं होती। I don't pass entry rent of A to cash bank. I will pass entry rent to bank, repairs to bank, insurance to bank, electricity to bank, depreciation to bank, नहीं, depreciation to assets।
मतलब आई डोंट डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, सेपरेट एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ इनकरिंग द कॉस्ट। तो प्रॉब्लम ये होगा एंड ऑफ द ईयर में आपके पास एक रेंट, एक डेप्रीसिएशन, एक इंश्योरेंस, एक इनडायरेक्ट लेबर, एक ही फिगर होगी, जबकि आपके पास प्रोडक्ट दो है और आप क्लब भी नहीं कर सकते क्योंकि एक का बेस मशीन आवर्स है, दूसरे का लेबर आवर्स है। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट। हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। किसको स्प्लिट करोगे? रेंट को स्प्लिट करोगे ए बी में, तो फ्लोर एरिया के हिसाब से चले जाओ। आपको डेप्रीसिएशन स्प्लिट करना है तो मशीन के वैल्यू के हिसाब से जाओ, क्योंकि मशीन आवर्स के हिसाब से डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होता। आइदर इट विल बी चार्ज बेस्ड ऑन SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, और इट विल बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ WDV, विच इज अगेन अ वैल्यू। सो आवर्स के हिसाब से डेप्रीसिएशन नहीं आता। Insurance is again on the basis of value of assets. Indirect labor on the basis of labor hours. ये सब अलोकेशन करने के बाद आपको मिलेंगे टोटल ओवरहेड्स ऑफ ए एज वेल एज टोटल ओवरहेड्स ऑफ बी। फिर आराम से बैठ के आप मशीन आवर्स और लेबर आवर्स से डिवाइड करके एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढ लो। तो मुझे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट या बजटेड आवर्स करने से पहले हर एक डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स ढूंढना पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग वी कॉल इट एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज समथिंग वी कॉल इट एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी एक काम करेंगे, पूरा इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? रिकवरी। Absorption is recovery. How will you recover the cost? There are 6 different bases. What are the 6 different bases? Either it will be your machine, either it will be your output, budgeted output, or budgeted machine hours, or budgeted labor hours, या फिर budgeted material cost, budgeted labor cost, budgeted prime cost. Preferably it should always be पर यूनिट। आउटपुट ही बेस होना चाहिए, नहीं है तो आवर्स में काम हो जाता है। मटेरियल, लेबर और प्राइम कॉस्ट कब यूज करोगे? ओनली इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? चलो एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 16 निकालो। विल फर्स्ट गो फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। We'll first go for primary distribution. Sans Limited is a manufacturing company having 3 production departments, A, B, and C, and 2 service department X and Y. Now, production departments are those departments which are actually involved in producing the product. That means actual transformation takes place. Raw material को convert करके अलग type का finished goods बनाने का काम जहाँ पे होता है, these are production departments. सर्विस डिपार्टमेंट्स आर दोज डिपार्टमेंट्स which render services to other department. जैसे आपका कैंटीन हुआ, जैसे आपका वेयर हाउस हुआ, जैसे आपका मेंटेनेंस हुआ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जैसे आपका IT सोल्यूशन हुआ। दे कैन नॉट टेल यू कि मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा। दे आर सपोज टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन, एवरी डिपार्टमेंट। सो दीज आर सर्विस डिपार्टमेंट जिनका प्रोडक्शन से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। They are not at all involved in production of a finished goods, but then they are very important because they render services to other departments, so that other departments will be able to perform their duty properly. Direct material, direct wages दोनों दिया हुआ है, already allocated. अभी जरा ABC XY जरा शिफ्ट हो जाएगा इधर, वो गलती से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ है। So this will be A, this will be B, C, X and Y, ऐसा आएगा। ठीक है? फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन एंड अदर ओवरहेड्स। So guys, I have 2 expenses already allocated, but I have 4 expenses which are not yet allocated. अब देखो, सबसे पहले एरिया इन स्क्वायर फीट बोला है। मेरे ख्याल से फैक्ट्री रेंट को हम लोग एरिया के हिसाब से स्प्लिट कर सकते हैं।
डेप्रीसिएशन को कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से कर सकते हैं। पावर, अब देखो मशीन आवर्स भी है, हॉर्स पावर भी है। क्यों? हमको ऐसा करवाया था बट हमको पता नहीं क्यों। देखो आपके हॉर्स पावर जो दिए ना 50, 40, 20, 15, 25, ये टोटल है या पर आवर है? उस पर डिपेंड करता है। आपको समझा क्वेश्चन मेरा? ये जो हॉर्स पावर आपको दिया गया है ये टोटल है या आर्ली है? कैसे पता चला आर्ली है? मशीन आवर्स आर गिवन, सो व्हाट, दे कैन गिव यू मशीन आवर्स एज वेल एज टोटल हॉर्स पावर। कैसे पहचानने का वो सुनो अच्छे से। यहाँ पे हॉर्स पावर कितना है? 50। यहाँ पे कितना है? 40। यहाँ पे कितना है? अगर मैं इसको टोटल मानता हूँ तो देखो क्या होता है। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मेरी कार है जिसकी पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी 50 लीटर्स है। मैंने पूरी कार लोड कर ली, मतलब 50 लीटर्स पेट्रोल लोड कर दिया। 1000 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ मैं। 50 लीटर्स में 1000 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ मैं। नेक्स्ट वीक मैंने सोचा कि नहीं यार 50 लीटर कौन डालेगा, अभी रेट बढ़ रहा है, वॉर चल रहा है, 40 लीटर ही डालता हूँ। तो कार 2000 किलोमीटर जाएगी। सोच के देखो, 50 लीटर में मेरी कार 1000 किलोमीटर जाती है तो 40 लीटर में वो 2000 किलोमीटर जाएगी। 1000 से भी कम जानी चाहिए। अच्छा 20 लीटर डाला तो 4000 किलोमीटर जाएगी, नहीं जाएगी ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैंने ये अज्यूम किया, बे क्या कर रहा है, अगर मैंने अज्यूम किया कि ये टोटल है तो टोटल 50 यूनिट्स में 1000 घंटा मशीन चलता है और टोटल 40 में 2000 चलता है। और टोटल अगर 20 होते हैं, मतलब कम होते हैं, तो मशीन 4000 घंटा चलता है। तुम लोग का हॉर्स पावर डायनासोर पावर में कन्वर्ट हो रहा है। पॉसिबल है? अरे टोटल भी तो बढ़नी चाहिए ना अगर आवर्स बढ़ रहे हैं। दैट इज अ हिंट दैट योर हॉर्स पावर इज गिवन ऑन आवरली बेसिस। that is a hint that your horsepower is given on hourly basis. तो हमको क्या करना पड़ेगा? I cannot simply rely on hourly horsepower when number of hours are totally different. भाई hours भी एक बार सेम होते ना तो फिर मैं ये 50-40 वाला रेशियो ले लेता, पर hours भी तो सेम नहीं है। तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि देखो सिंपल है, 1 घंटा 50 यूनिट तो 1000 घंटे का 50,000 यूनिट्स लगा होगा। इधर 1000 घंटे का 80,000 यूनिट्स लगा होगा। इधर 4000 घंटे का 80,000 लगा होगा। इधर 15,000 घंटा लगा, 15,000 यूनिट्स, और यहाँ पे 25,000 यूनिट्स लगे होंगे। व्हाट डज दैट मीन? अभी देखो, डजंट इट साउंड रीजनेबल? 1000 का 2000, 2000 का 4000 हो रहा है तो 50,000 का 80 भी तो हो रहा है। अरे लेकिन ये तो 2000 का 4000 हो गया तो भी 80 का 80 है। हाँ, क्योंकि ये डबल हुआ लेकिन ये 50% पे चला गया तो नेट इफेक्ट इज सेम। मतलब अब ये लॉजिकली प्रूव हो रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल। तो हमारे लिए रेशियो क्या होगा? 50:80:80:15:25 कॉम्पोजिट रेशियो लेंगे हम लोग। दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट रेशियो। दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट रेशियो। You cannot simply rely on hourly basis if number of hours are different. You cannot even rely on per unit basis if number of units are different. Simple example लेता हूँ, ये 10,000 का पेन है और ये लाख रुपए का फोन। Can I say the ratio is 10:1? No, the ratio is 10:1. Provided I am talking about one unit. If I buy 10, my total cost will be equal 1 lakh 1 lakh. तो अगर आप टोटल कॉस्ट को स्प्लिट कर रहे हो तो आप सिर्फ पर यूनिट पे या पर आवर पे रिलाय नहीं कर सकते। यू नीड टू गो फॉर टोटल रेशियो। करेक्ट? और तुम लोग ने ब्लैक पॉलिश, ब्राउन पॉलिश का सम कॉस्ट शीट में किया होगा। सुपर पेन, नॉर्मल पेन का सम आपने सॉल्व किया होगा। ये टिपिकल पैटर्न क्वेश्चंस है। आज तक कभी इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, लेकिन वो सारे कंसेप्ट यहां पे काम आ रहे हैं। अब समझा डिटेल में कॉस्ट शीट करवाने का रीजन?
ये कॉन्सेप्ट समझा क्लियरली? तो यार मुझे पावर मिल गया, रेशो में खत्म कर देंगे। अदर ओवरहेड्स का क्या करें? अब क्वेश्चन में कोई बेस नहीं दिया, तो टेल मी विच आउटपुट अगर लोगे तो फिक्स्ड ओवरहेड्स आउटपुट के हिसाब से जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। If you are calling it as a fixed cost, you can't consider output as a base. Fixed cost is a period cost. Period मतलब टाइम। क्वेश्चन में टाइम का क्या डेटा दिया है? पक्का ना? टाइम है ना हमारे पास? कितना है? 1000, 2000, 4000, 1000, 1000। अब सोचो, अगर कुछ नहीं बोला तो किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा खर्चा होगा? एक मिनट, ये आर्स है, तो कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ होगा? उसी डिपार्टमेंट में जिसमें सबसे ज्यादा काम हुआ है, सी में। अरे तो अदर ओवरहेड्स के बारे में अगर कुछ नहीं बोला तो यू कैन ऑलवेज कंसीडर नंबर ऑफ मशीन आवर्स एज अ बेस। अगर फिक्स कॉस्ट है तो पीरियड के हिसाब से जाने दो। हाँ, एक ही चेंज होगा, अगर ये अदर ओवरहेड्स के बदले इनडायरेक्ट लेबर होता तो मैं लेबर आवर्स को बेस बनाता, मशीन आवर्स को नहीं। लेबर का मशीन आवर्स से क्या कनेक्शन है? मैं लेबर आवर्स को बेस बनाता या लेबर कॉस्ट को बेस बना देता, बस इतना ही फर्क है। आपको समझ में आया? मतलब हमको इतना क्लियर हो गया है कि पहले दो एक्सपेंसेस ऑलरेडी अलोकेट करके हो गए, इसका बेस डिस्कस कर लिया, इसकी वर्किंग नोट डिस्कस कर ली, डेप्रिसिएशन डिस्कस कर लिया, इसके बारे में कुछ नहीं बोला था। तो बीइंग अ फिक्स कॉस्ट वी कंसीडर पीरियड एज अ बेस। मतलब हम लोग सारे एक्सपेंसेस को स्प्लिट करके एबीसी एक्सवाई में डाल सकते हैं। चलिए, द टेक्निकल असेसमेंट ऑफ द अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू सर्विस डिपार्टमेंट इज एज अंडर। ये ध्यान से देखना, डिपार्टमेंट एक्स जो है वो 45% सर्विस जो है वो ए को देता है, 15% बी को देता है, 30% सी को देता है और 10% वाई को देता है। मतलब 100 घंटा अगर काम होता है तो 45 आवर्स विल बी फॉर डिपार्टमेंट ए, 15 hours will be for department B, 30 hours will be for department C and 10 hours will be utilized for department Y. डिपार्टमेंट Y जो अलग सर्विस डिपार्टमेंट है वो 60% टाइम A को देता है, 35% टाइम B को देता है और 5% टाइम X को देता है। अब ये सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को कैसे सर्विस दे सकते हैं? पॉसिबल है ना यार। सुनो, मेरे पास 4 डिपार्टमेंट्स है, A B जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, C फॉर कैंटीन एंड देन आई हैव वेयर हाउस। अब इसमें से कैंटीन एंड वेयर हाउस जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है, ए एंड बी जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो कैंटीन में ए का एम्प्लॉय जाता होगा, बी का एम्प्लॉय जाता होगा, तो वेयर हाउस का एम्प्लॉय थोड़ी बैंड है, कैंटीन तो वो भी यूज करता होगा, हाँ या ना? अच्छा, ए का मटेरियल वेयर हाउस में स्टोर करते हो स्टॉक, बी अपना स्टॉक स्टोर करता है, तो कैंटीन वाला भी अपना गेहूं का बोरी, राइस बैग्स, जूट बैग्स स्टोर तो करता ही होगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट भी एक दूसरे को सर्विस देते हैं। जैसे सपोज ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तो बिल्डिंग मेंटेनेंस वाले भी तो कैंटीन में जाते होंगे, और कैंटीन में सपोज लीकेज हो रहा है तो कैंटीन वाला बोलेगा तो बिल्डिंग मेंटेनेंस को आके करना पड़ेगा। अच्छा, तू कैंटीन वाला है, तू प्रोडक्ट तो बनाता नहीं है, मैं सर्विस नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होगा ना। बिल्डिंग इज अ बिल्डिंग, यू हैव टू सर्व। सो इंटरनल सर्विस पॉसिबल है व्हेन इट कम्स टू सर्विस डिपार्टमेंट्स। आपको यहां तक क्लियरली समझा है सब कुछ? ओके, कैलकुलेट मशीन आवर रेट यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड्स। मशीन आवर रेट मतलब ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। पर यार अपने पास तो ओवरहेड्स है नहीं, तो दैट इज व्हाई आई सेड वील हैव टू स्टार्ट विद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टार्ट विद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको समझा लॉजिकली हम लोग कैसे पहुंचे इधर? मेरी इच्छा बहुत है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड मशीन आवर्स करने के, लेकिन औकात नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रक्चर। और ठीक है, तो बचपन से स्टार्ट करते हैं। विल फर्स्ट गो फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सारे एक्सपेंसेस को स्प्लिट कर देंगे 5 डिपार्टमेंट में, फिर एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेंगे। ठीक है, अब डिपार्टमेंट्स कितने हैं? 5। तो 5 डिपार्टमेंट्स का कॉलम तो आएगा ही, एक बेसिस का कॉलम आएगा
और एक आएगा पर्टिकुलर्स का। ऐसा एक फॉर्मेट रेडी करो क्विकली, विल क्लोज दिस। आगे बढ़े। ओके, कौन से क्या क्या डिपार्टमेंट्स है आपके पास? अच्छा, आपका पहला कॉलम आएगा बेसिस वाला, पर्टिकुलर्स के बाद सबसे पहला कॉलम बेसिस, फिर ए बी सी एक्स वाई। क्या बना रहे हो? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, पर इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड्स allocation. ब्रैकेट में if you want you can write down this is primary distribution. ब्रैकेट में you can write down primary distribution. ठीक है, स्टार्ट करें? ओके, आपकी फर्स्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। आपकी सेकंड कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट लेबर। ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, बढ़िया। तो सुनो, इट्स गिवन। अभी ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। क्यों, क्या अलोकेट करने निकले हो आप लोग? ओवरहेड्स मतलब डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट? तो फिर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्यों आएगा? वेरी सिंपल, if you are allocating overheads, you are allocating indirect cost, and if you are allocating indirect cost, why do you need direct cost in the calculation? फिर ये डाउट आएगा, लेकिन सर ऐसा तो गलत हो जाएगा ना, मतलब हम लोग चार्ज नहीं करेंगे क्या डायरेक्ट कॉस्ट कस्टमर को? बिल्कुल करेंगे बाबू, लेकिन वो कॉस्ट शीट में, जो कॉस्ट शीट जब बनाते हो तो पहला आइटम क्या लिखते हो? डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा आ तो गया, आ तो गया, वो कॉस्ट शीट में डायरेक्टली आ जाएगा, उसको ओवरहेड्स बना के डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट की अगर बात करते हो तो एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो 2 मीटर इंटू रेट, डायरेक्टली रॉ मटेरियल पर यूनिट मिलेगा। 3 घंटा वर्कर काम करता है तो 3 घंटा इंटू वर्कर का रेट, डायरेक्टली लेबर कॉस्ट मिलेगी। प्रॉब्लम यह है कि एक शर्ट के लिए ऑयल कितना लगता है वो नहीं पता, इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं। एक शर्ट के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है वो नहीं पता, इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं। आई होप यू आर क्लियर विद इट। ओके, ये समझा क्यों किया ऐसा? चलो तो फिर एक और कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं। ये देखो, अभी तो बोला डैश लिखने का, सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। सुनो, डायरेक्ट कॉस्ट होगी, जैसे शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए डायरेक्ट मटेरियल विल बी क्लॉथ। Can you manufacture a shirt without cloth? Can you manufacture a shirt without thread? No. Can you manufacture a shirt without buttons? No. Can you run canteen without oil? Edible oil. Brake oil नहीं. Edible oil. No. Okay. Can you run a canteen without vegetables? No. Can you run canteen without butter? No. Cheese? No. No. तो डायरेक्ट मटेरियल जैसा प्रोडक्शन में होता है वैसे सर्विस में भी होगा। अब ये सोचो, क्लॉथ नहीं आया, शर्ट बनेगा? नहीं। बटर नहीं होगा तो शर्ट बनेगा? हाँ। इट माइट बी अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर सर्विस डिपार्टमेंट,
बट योर एंटायर सर्विस डिपार्टमेंट इज एन इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट। तो उसमें ये सब आ जाता है, उसमें सोचना ही नहीं है हमको क्या लेना क्या नहीं लेना है, सब लेना है। क्योंकि आपकी कॉस्ट शीट क्लॉथ से स्टार्ट होगी, टेलर का रेम्यूनरेशन डायरेक्ट वेजेस दिखेगा, बट ऑयल बटर ये सब कहां से आएगा? वो तो इनडायरेक्टली चार्ज करना पड़ेगा ना, जो कैंटीन में यूज हो रहा है। टेलर्स रेम्यूनरेशन वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है ना, वो तो आ जाएगी कॉस्ट शीट में। वैसे ही कुक का रेम्यूनरेशन इज अ डायरेक्ट वेजेस फॉर कैंटीन। एक दिन टेलर नहीं आया, शर्ट बनेगा? श्योर ना? कुक नहीं आया तो कैंटीन नहीं चलेगा, लेकिन शर्ट तो बनेगा। सो इट माइट बी अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर सर्विस डिपार्टमेंट, बट फॉर प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव इट इज इनडायरेक्ट ओनली। तो सर्विस डिपार्टमेंट में सब कुछ आएगा। आपके स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने मटेरियल भी लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दोनों लिया है। वो क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो उसके ऊपर लिखा है अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, नॉट अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। अब अलोकेशन ऑफ कॉस्ट बोला है तो ले लो, बट अगर ओवरहेड्स का अलोकेशन करना है तो हमेशा डैश आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। समझ में आया? ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद रेंट है, फैक्ट्री रेंट। अच्छा, रेंट के लिए हमने क्या रेशियो डिसाइड किया है? एरिया। चलो, तो 4 लाख का रेंट और एरिया का रेशियो 50:25:50:50:25:50। आप लोग प्रॉपर फिगर्स लिखना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। क्योंकि आपको एग्जाम देनी है, मेरे को सिर्फ रिवीजन करवानी है। तुम लोग लिखते हो के वगैरह ऐसे एग्जाम में? मत लिखना, जहाँ तक पॉसिबल हो मत लिखना। मतलब ऐसे 50,000 पूरा लिखो, डोंट राइट 50K एंड ऑल दैट, डजंट लुक गुड। लिखा? चलो नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन। अच्छा ठीक है, पावर ले लेते हैं। पावर में वी नीड टू गो फॉर वर्किंग नोट 1। अरे वर्किंग नोट 1 करके दिखाना पड़ेगा ना। आप डायरेक्टली कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो फिर एक काम कर सकते हैं, देखो आपको डायरेक्ट ही लिखना है तो वो भी शॉर्टकट बता देता हूं। आइडियली आई प्रीफर वर्किंग नोट। आइडियली आई प्रीफर वर्किंग नोट। अगर आपको नहीं करना है तो HP इंटू मशीन आवर्स लिख दो, वो भी चलेगा मुझे। मैं जनरली जब मेन कोर्स करवाता हूं तब मैं प्रॉपर वर्किंग नोट बनवाता हूं, क्योंकि वहां पे बच्चों को स्टार्टिंग से समझना और बाकी आगे जाके 7 महीना पढ़ना भी है। अब ये रिवीजन है तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वी कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस। HP इंटू मशीन आवर्स का जो रेशो होगा वो ले लेने का। बोलिए। हाँ तो करो अलोकेशन। नहीं रे, हाँ हाँ, उत्तरी यार ऐसा हो गया। अभी कर, वापस कर, कोई बात नहीं। यहां पे जितना गलत जा रहे हो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए वर्किंग नोट लिख के करनी होती है, हेंस प्रूव्ड। नहीं, इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाई आई इंसिस्ट सर्टन थिंग्स। तो ये आ जाएगा 50,000, ये आ जाएगा 80,000। मैंने लिखा भी था ना, ये देखो 50। वो तुम लोग एग्जाम में वर्किंग नोट बना के कर सकते हो, मतलब करो। 50:80:80:15:25 is the ratio to be considered. हाँ जी, कितना आ रहा है? पावर कितनी है? 2,50,000 है। तो 2,50,000 को 50:80:80:15:25 में स्प्लिट कर दो।
वही आएगी जो फिगर, जो रेशो उठा है। नहीं समझा? कैलसी नहीं है तुम लोग के पास? मोबाइल पे क्यों कर रहे हो? नहीं दैट्स ओके, बट एग्जाम में एक तो हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 कैलसी कैरी करना, सेम मेक के, अलग अलग नहीं, हाथ बैठा हुआ होना चाहिए। एक अगर बंद पड़ गया तो सीधा दूसरे पे चालू कर देने का, एंड यूज ऑल्टरनेट, मतलब ऐसा नहीं कि एक बंद पड़ने तक दूसरा ये रहे, स्टार्ट यूजिंग बोथ। अभी भी पढ़ाई के टाइम पे दोनों एक्टिव होने चाहिए कैलसी। एग्जाम में ना क्या है, फिर 5 मिनट भी वेस्ट होता है तो दैट विल कॉस्ट यू, प्लस पैनिक होंगे, ये अलग बात, दिमाग और ख़राब हो जाएगा, ख़राब तो होता ही है प्रेशर की वजह से, तो और ख़राब हो जाएगा, वो लफड़ा ही नहीं चाहिए। चलो पावर डन। अच्छा नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन। ये तो कैपिटल वैल्यू के हिसाब से आएगा, कैपिटल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस। अच्छा वही आएगा 2:4:2 क्या आएगा? डेप्रिसिएशन 2:4:2 2:1:1। ये समझा? ऑनलाइन वाले जाग रहे हो ना, सोए नहीं ना? ओके हाँ जी। डेप्रिसिएशन के बाद अदर ओवरहेड्स। अदर ओवरहेड्स क्या डिसाइड किया हमने? 1:2 2:4 4:1:1। डन विद द टोटल कितना है? 2.7 लाख, 3.7 लाख, 6 लाख, 4.75 लाख, 5.35 लाख। यहाँ तक क्लियर है? अब सबसे बड़ा काम हो गया अपना, क्या था वो? ओवरहेड्स एलोकेट हो गए। अब इन्हीं को मशीन आवर से डिवाइड करोगे तो एब्जॉर्प्शन रेट मिल जाएगा। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जानना चाहोगे क्या है? ऑब्वियसली छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि आपने 5 डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दिया कॉमन कॉस्ट, दैट इज फाइन, पर इनमें से जो लास्ट 2 है ना, दे आर सर्विस डिपार्टमेंट एंड कस्टमर विल नेवर एग्री टू पे फॉर सर्विस डिपार्टमेंट। कस्टमर बोलेगा भाई मैंने थोड़ी वड़ा पाव मंगाया था तेरे कैंटीन में से, या तेरा आईटी सॉल्यूशन मेरा घर का पीसी साफ करके देता है क्या? व्हाई शुड आई पे फॉर इट? आइडियली हुएवर एंजॉयज द सर्विस मस्ट बेयर द बर्डन, बराबर? तो टेक्निकली अगर कैंटीन इज यूज्ड बाय, सपोज वी हैव ए बी एंड कैंटीन, सी फॉर कैंटीन, अगर कैंटीन ए और बी के एम्प्लॉइज यूज करते हैं तो कॉस्ट शुड बी बोर्न बाय ए एंड बी, व्हाई शुड आई पे फॉर इट? See, our customer says, I don't mind paying for department A and B because both are production departments. And I will not pay for canteen. And customer is God, customer is right. Suppose 11 लाख रुपए आपने खर्च किया डिपार्टमेंट ए पे, 9 लाख आपने खर्चा किया डिपार्टमेंट बी पे, 2 लाख रुपए आपने खर्चा किया कैंटीन पे। Now you cannot charge 2 lakhs to the customer directly. Who's using services of canteen? एम्प्लॉइज ऑफ ए एंड बी। 50-50 एम्प्लॉइज है दोनों में, बढ़िया, फैंटास्टिक। तो कैंटीन कॉस्ट 0, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट 12 लाख, डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट 10 लाख। 12 लाख विल बी डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, 10 लाख विल बी डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। कस्टमर कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज कस्टमर हैज ऑलरेडी सेड he is ready to pay me for A and B, and ma kasam, this is not cost of canteen, nah, this is cost of A using canteen and cost of B. So I have one thing very clear, my customer has said that I am ready to pay for A and B, so this is cost of A now. 1 lakh is not a canteen cost, it is cost of A using canteen. टोटल कितनी है? टोटल कितनी है? पहले कितनी थी?
पैसा पूरा आ रहा है, लेकिन 3 नहीं 2 डिपार्टमेंट्स. Service department cost, trust me, service department cost will never be charged to the customer directly. That is why it is called as indirect cost, no? That is why it is called as indirect cost. तो मुझे क्या करना चाहिए? Now I'll have to go for secondary distribution. मुझे यहाँ पे 4.75 और 5.35 को रीअपोर्शन करना पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और इसके 5 मेथड से. 2 इनिशियल मेथड्स है, इलॉजिकल वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लॉजिकल मेथड डिस्कस कर लेते हैं. लॉजिकल मेथड्स आर कवर्ड अगेन अंडर अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एंड द नेम इज रेसिप्रोकल मेथड. रेसिप्रोकल मेथड हैज गॉट 3 पार्ट्स. रेसिप्रोकल मेथड हैज गॉट 3 पार्ट्स. नाम लिख लो पहले. सबसे पहली मेथड नंबर 1, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड which is also known as continued distribution method, which is also known as cycle method. सर 3 मेथड हो गए? 3 नहीं हुए, पहले मेथड के 3 नाम लिखवा दिए मैंने. 2 मेथड अभी बाकी है, वो बाद में डिस्कस करते हैं. पहले इसकी बात करते हैं. क्या ये नाम क्या है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ओके, अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में it is the most logical method to be applied. In fact, entire reciprocal method में 3 methodologies है, मतलब तरीके अलग है, लेकिन तीनों का आंसर सेम आएगा. इसीलिए तीनों लॉजिकल है. All 3 are recommended by cost accounting standard 7, cost accounting standard 3. तो इसमें एकदम सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है. 5 ओवरहेड्स है ना, 5 कॉलम तैयार करो. लेट्स डू इट साइमल्टेनियसली. 5+1 विल बी द फॉर्मेट. स्टार्ट करें. दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ reapportionment. This is your statement of reapportionment, which is also known as secondary distribution. A, B, C, X, Y. 5 अलग डिपार्टमेंट्स. Tell me how much is the cost? 2.7 lakhs, 3.7 lakhs, 6 lakhs, 4,75,000, 5,35,000. यहाँ तक क्लियर है? अब हमको करना क्या है?
रीअपोर्शनमेंट। तो सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट लोगे? नहीं, दैट डिपेंड्स। हर बार एक्स को इतना प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। सुनो ध्यान से, एक्स कितना ट्रांसफ़र करता है वाई में, और वाई कितना ट्रांसफ़र करता है एक्स में, बराबर? एक्स ट्रांसफर्स, वाई ट्रांसफर्स, so which department transfers more? That's why X will be selected first. अगर Y 5% के बदले 15% ट्रांसफर करता तो I would have dumped X again and I would have gone for Y. Sorry, I would have dumped X and I would have gone for Y. अरे आप सही चीज पे ध्यान दो, तुमको वो समझ में आ रहा है? हाँ, तो परसेंटेज जितना ज्यादा उतनी अमाउंट पहले एलोकेट हो जाएगी, तो आपके रिपीटेशंस कम होंगे। मेजर पोर्शन विल बी ट्रांसफर्ड फर्स्ट। समझा? यहां पे एक्स इज ट्रांसफरिंग मोर, तो मैं एक्स को प्रायोरिटी दे रहा हूं। 4.75 एक्स में से माइनस होगा, 4.75 एक्स में से माइनस होगा और वो अलोकेट होगा बाकी सब में। अप्लाई दोस परसेंटेजेस। 45%, 213, 750 और 715, 750 ना। बढ़िया, बोलो। ऑनलाइन पीपल कीप ऑन कैलकुलेटिंग, सोगे नहीं। नेक्स्ट 71250, 142500। चलो लास्ट में निकाल लेता हूँ, 47,500। 10% है ना, तो पॉसिबल है। मिला? अभी गौर से देखना, एक हमने एलोकेट कर दिया, लेकिन y में ऑलरेडी 535 उसका खुद का है, एंड नाउ इट इंक्लूड्स 47,500 गिवन बाय x। तो हाउ मच डज दैट डिपार्टमेंट हैव नाउ? 582,500 इन y। और उसका परसेंटेज क्या दिया? 60, 30, 60, 35 एंड 5। चलो अप्लाई करो। 3 लाख 49,500, 29,125, सी में डैश आएगा, याद रखना, एंड 29 उत्तरी, और एक्स इज बैक इन योर लाइफ। इसीलिए नाम क्या रखा है इस मेथड का? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यू हैव टू कीप ऑन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स रिपीटेटिवली। तो शैल वी गो अहेड नाउ? डिपार्टमेंट एक्स में 29,125 आ चुका है, 29,125 आ चुका है डिपार्टमेंट एक्स का। 45%, 30,106। नहीं 29,125 का करना है। कितना? 13,000। सॉरी मैंने 30,000 सुना। 13,106। फैंटास्टिक। आगे 369, 8,738। ये मैं निकाल लेता हूँ। टेन % ही लेना है ना उसका। 10% ले लिया? कोई डाउट? श्योर? 2912 को लेके कोई डाउट? अच्छा 2913 क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ डाउट? हमको बैलेंसिंग फिगर लेनी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, आइडियली 10% इसका अगर पहले लेते तो 2913 ले लेते, लेकिन सिंस वी आर गेटिंग दैट एज अ बैलेंसिंग फिगर, ये सब कुछ माइनस करने के बाद अपने पास यही बचता है बॉस, तो वही लेना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। समझ में आया ना?
अभी हम लोग लेंगे डिपार्टमेंट वाई 2912 2912 में क्या आ रहा है 1747 ठीक है इट्स ओके 1019 फिर सी का मैं बोल देता हूँ डैश 146 अमाउंट राउंड ऑफ कर लेना क्योंकि फिर वो एंड नहीं होगा उसका कुछ करना है सब कुछ राउंड ऑफ करना है लास्ट वाला जो था ना दैट हैज टू बी अ बैलेंसिंग फिगर क्योंकि अपने पास उतना पैसा ही नहीं बचता ना देखो आपके पास कितना है 29,125 ये तीनों फिगर माइनस करो आप देखो आपके पास कितना बचता है 2912 ही बचता है आपके पास तो वही आएगा एंड दैट्स ऑल राउंडिंग ऑफ एरर इट्स नॉट योर फॉल्ट एक्स वापस आ गया चलो कोई बात नहीं हमको पता है क्या करना है इसके साथ अब 146 माइनस होगा 1 मिनट हाँ कितना बोला 66 22 44 और लास्ट आएगा 14 146 का 10% 14.6 15 लेने की इच्छा तो बहुत है मगर औकात नहीं क्योंकि 146 में से ये 3 माइनस करने के बाद चेक कर लेना अपने पास सिर्फ 14 ही बचेगा समझ में आ रहा है क्या करना है अभी नाम समझा क्या है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट 14 में माइनस कर दूंगा 60% 8 35% 5 डैश 1 लिखना बंद करो डोंट राइट बराबर ना यही आएगा ना अभी सुनो 1 मिनट 1 रुपया है अभी अगर 1 रुपया माइनस कर दे नेक्स्ट लाइन पे तो इसका 45% आएगा 0.45 गलती से भी डेसिमल्स में मत जाना बिकॉज वंस यू स्टार्ट देयर इज नो एंड बाकी क्वेश्चंस भी उसी दिन सॉल्व करने हैं तो करना क्या है इफ यू रियलाइज दैट योर नेक्स्ट लाइन हैज 0 point something don't let the next line appear आपका कैलकुलेशन उधर ही खत्म हो जाना चाहिए अब ये तभी पॉसिबल होगा जब आप x पे ट्रांसफर करना बंद कर दोगे 1 रुपया बचा है इफ यू वांट योर allocation to be closed सबसे पहले क्लोज सर्विस डिपार्टमेंट गेट रीड ऑफ x योर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड अब कितना 1 रुपया बचा है ना अब तुमको जो अच्छा लगता है उसमें डाल दो ए अच्छा लगता है तो ए को दे दो बी अच्छा लगता है तो बी को दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल आंसर विल नॉट गेट अफेक्टेड आपको समझा मैंने क्या किया मेरे नेक्स्ट लाइन पे अगर 0 point something आता है तो मेरी नेक्स्ट लाइन ही नहीं आनी चाहिए उस लाइन में जो भी मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट में बचा है वो सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो गलती से भी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर मत करना वरना एक और लाइन ऐड हो जाएगी समझा चलो आई विल टेक टोटल ऑफ एक्स एंड वाई यू टेक टोटल ऑफ अदर 3 अरे अभी कैल्सी नहीं है मेरे पास क्या कर सकते तुम लोग के पास है करो एट 48 177 282 total overheads अभी तुम लोग को मजे की बात देखनी है तो टेक द टोटल ऑफ द लास्ट लाइन वंस यू राइट दिस टेक द टोटल ऑफ द लास्ट लाइन फैंटास्टिक ऑनलाइन पीपल गुड टू सी यू participating in this
टाइगर जिंदा है जीत. आई एम हैप्पी टू सी दैट. हाँ जी. टेक द टोटल ऑफ द लास्ट लाइन. 22 लाख 45,000. हाँ ठीक है, पहला लाइन माइनस कर दो उसमें से. पहले का 177 है 178 है. फर्स्ट टोटल, सेकंड 540, $541 होगा. ये टोटल 541 होगी. लास्ट लाइन की टोटल माइनस फर्स्ट लाइन की टोटल. फर्स्ट लाइन 0 आ रहा है. इसका मतलब 5 डिपार्टमेंट की कॉस्ट अब 3 डिपार्टमेंट में आ चुकी है. तो हमेशा कैसे वेरीफाई करने का, लास्ट लाइन का टोटल लो, उसमें से फर्स्ट लाइन का एक एक आइटम माइनस करते रहो. कैलसी पे अगर 0 आया तो मार्क्स 0 नहीं आएंगे. मतलब देखो 5-10 रुपए का डिफरेंस होगा तो दैट इज फाइन, दैट इज एक्सेप्टेड. 5-10 रुपए का डिफरेंस है तो एक्सेप्टेड. ज्यादा होगा तो नहीं होगा. 500-600 में आ रहा है तो फिर वो बहुत बड़ा बैग होता है. ये समझा? अच्छा, आपके मशीन आवर्स कितने हैं? 1000, 2000 and 4000. Am I right? तो लास्ट लाइन पे मिलेगा एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? 848.18, 325.27, 187.88. बोलिए, ये समझा? तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक जॉब अंडरटेक करना है जहाँ पे मटेरियल लेबर के साथ साथ 100 घंटे लगेंगे डिपार्टमेंट ए में, 200 घंटे लगेंगे डिपार्टमेंट बी में, 300 घंटे लगेंगे डिपार्टमेंट सी में, तो 100 घंटा इधर 200 घंटा इधर 300 घंटे से मल्टीप्लाई करके ओवरहेड्स मिल जाएगा. तो हमने जो डिस्कशन किया था ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो ये लास्ट 3 लाइन्स है. क्या था वो? बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड मशीन आवर्स. पर वो बजटेड ओवरहेड्स ढूंढने के लिए हमको पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा. बात समझ में आई? दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ रेसिप्रोकल मेथड. अब सेकेंड पार्ट क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. लिख दो सेकेंड मेथड, नाम लिख दो, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. अभी ध्यान से सुनो, हमारे पास ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है. सोच के बताना, क्या ये एक्स एंड वाई की टोटल कॉस्ट है? नहीं. क्यों पता है? अपार्ट सी, ये तो आपने सिर्फ एक्स एंड वाई पे किया हुआ खर्चा है. अभी एक्स कुछ ट्रांसफर करेगा वाई में और वाई कुछ ट्रांसफर करेगा एक्स में. वो फिगर अभी तक अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो हमको पहले वो ढूंढना पड़ेगा. वी विल फर्स्ट फाइंड आउट टोटल कॉस्ट. और टोटल कॉस्ट के लिए सिंपल कैलकुलेशन, लेट द टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट एक्स बी एक्स and total overheads of department Y BY. Let total overheads of department X be X and total overheads of department Y be Y.
अब अगर मैं x की ओवरहेड्स लेने की कोशिश करूं तो 4,35,000 x का खुद का है, नहीं 4,75,000 x का खुद का है, 4,75,000 x का खुद का है और y का 5,35,000 खुद का है, प्लस इनमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नली सॉरी रादर इंटरनली ट्रांसफर होगा. हाउ मच इज ट्रांसफर्ड बाय x टू y? 10%. श्योर. हाँ. If x transfers 10% to y, y will receive 10% of x. Yes. हाँ. समझा? हाँ. If x transfers 10% to y, y will receive 10% of x. So y will include 10% from x and x will include 5% from y. But ये 0.05 लिखना. 0.5 is 50%. Not even 50% marks you will get. इधर से ही गलत जाएगा सोल्यूशन मतलब 0. आपको समझा? It is 5%. So 0.05 of y. बस ये एक एरिया है जो आपको संभालना है, बाकी इसके बाद सब कुछ एकदम क्लियर. आगे बढ़े. अब एक काम करेंगे, विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. सो x इज इक्वल टू 4,75,000 प्लस 0.05. 0.05 क्या है? y. बट y इज इक्वल टू 5,35,000 प्लस 0.10x. आराम से करना ये कैलकुलेशन. 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.10 इज 0.005. 0.15 नहीं. कर लिया? ओके. एट द एंड ऑफ दिस यू विल रियलाइज वैल्यू ऑफ योर x. No. Let them do it. I hope you guys can solve this. अगर किसी को चाहिए मैं सॉल्व करूँ तो बोल दो भाई, फटाफट मैं सॉल्व कर देता हूँ. हो गया? कुछ भी दिक्कत है तो बोल दो, मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ. आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस, इसलिए चुपचाप बैठा हूँ मैं. यहाँ तक मिल गया? अभी सुनो, लेट्स मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी. एक्स की वैल्यू है ना, इक्वेशन 2 में डाल दो. कहीं और डालोगे तो थोड़ा सा आंसर बदलेगा. एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ वाई. समझा? बोलिए. अमाउंट बोलो. 4 to 7. अब देखो पहले कितना था? 475, लेकिन असल में कितना है? 5,04,000, क्योंकि y से कुछ आया है. ये था 5,35,000, लेकिन असल में कितना है? 585, क्योंकि एक से थोड़ा आया है. समझा? सो कैन आई से विद दिस you already have, hey listen, with this you already have 100% cost, isn't it? Chalo. Now, since you already have 100% cost with you, can't you allocate your 100% cost now?
let's do it simultaneously. Statement of reapportionment. How many production departments do you have? 3. तो सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट्स यहां पे दिखेंगे. करेक्ट? ऑलरेडी 2.7 lakhs, 3.7 lakhs और 6 lakhs चार्ज कर चुके हो. अब क्या आएगा? डिपार्टमेंट एक्स. सुनो, डिपार्टमेंट एक्स कितना ट्रांसफर करता है? 45%, 15% एंड 30% टू एबीसी. बराबर? और सुनो, डिपार्टमेंट वाई कितना ट्रांसफर करता है? 60% ए को, 35% बी को. करेक्ट? चलो अलोकेट कर लो इतना. You already know total cost of X. Apply 45%, 15%, 30%. And plus you already know total cost of Y. Apply 60%, 35%. डन. टोटल कितनी है? ना 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 848 177 एट द मोस्ट 178 हुआ होगा उसका. 1 रुपया को कब से तकलीफ दे रहा है हमको. अब टोटल कॉस्ट मिली 848 178. दूसरे का 650. 650 के बाद क्या? 540. 650 540 और तीसरे का 750 280. अब इसको डिवाइड करो 1000 2000 4000 से एंड चेक योर एब्जॉर्प्शन रेट्स विद द प्रीवियस कैलकुलेशन. चेक योर एब्जॉर्प्शन रेट्स विद द प्रीवियस कैलकुलेशन. 2 अलग तरीके के काम करने के बाद भी your absorption rate is still the same. You are actually you are realizing what we are doing. What do you mean by to reciprocate? I'll give you something, you give me something. That is what we are doing. X is transferring everything to Y, Y is transferring everything to X, again X is transferring, again Y is transferring. So till the last rupee you are transferring cost to each other. This is the most logical and the most acceptable basis of charging cost to the customer. Simultaneous method समझा? अब एक चीज याद रखना लाइफ में, दोनों का आंसर सेम रहेगा. आगे बढ़े. देयर इज वन मोर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड. क्या नाम? ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड error method. Now, what do you mean by this? थोड़ा अजीब नाम है, बट पहली बार नाम का काम से कोई कनेक्शन नहीं. See, repeated distribution clearly indicated what we are going to do. Simultaneous equation method also indicated what we are going to do. इसका ना थोड़ा अजीब है. इसमें करना क्या पता है? Concept of the second method but style of the first one. क्या बोला मैंने? Concept of the second method but style of the first. Methodology will be used from the first one. मतलब समझाता हूँ. Second method में first method में क्या फर्क था? Repeated distribution method देखो.
टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड, शुरू किया खत्म, एब्जॉर्प्शन रेट सीधा निकला एंड में. But simultaneous method was split into two parts. First we calculated total overheads as a first part of method, and then we allocated. So you will have to get your total overheads calculated and then allocate them. यहाँ पे भी दो parts होंगे. We'll first find out we'll first find out total overheads of x and y. लास्ट टाइम हमने टोटल ओवरहेड्स ढूंढने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज की थी. इस बार हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे. इट विल बी दैट सिंपल. ध्यान से सुनना. आपका ओवरहेड्स है कितना? 4,75,000, 5,35,000. ये आपका एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स है. अच्छा, प्रायोरिटी किसको दी थी हमने? क्यों? ज्यादा ट्रांसफर कर रहा है. ओके, तो हाउ मच इज ट्रांसफर्ड बाय x टू x? नथिंग. गुड. एंड हाउ मच इज ट्रांसफर्ड बाय x टू y? सो 47,500 गोज टू y. अब सुनो, पहला 535 एलोकेट होना बाकी है. Kindly get the total. 5,35,000 plus 47,500. I'll tell you, Rehan. I will tell you that. I will tell you that once I complete this method, beta. Just wait. बोलिए. 582. 500. उसका 5% x में जाएगा. ले लो. 29,125. चलिए. इसका 10% 29,13 ले सकते हैं अभी. 13 ले सकते हैं क्योंकि पहली बार है. इसका 5% 146. इसका 10% 15 ले सकते हैं. पहला कैलकुलेशन है. और लास्ट टाइम बचा नहीं था इसलिए 14 लेना पड़ा था. इस बार 14.6 का 10% पहली बार अगर कर रहे हो तो 15 ले ही सकते हो आप लोग. अच्छा, एक बात बताओ, 15 का 10% नहीं 5% जाएगा तो कितना आ रहा है? 0.75. तो क्या स्ट्राइक होता है? नेक्स्ट लाइन आनी ही नहीं चाहिए. क्लोज दिस. नाउ यू गेट द टोटल. 504,271 and 428. सॉल्व कर दिया. अभी सॉल्व किया है? अभी किया ना? हाँ फिर ठीक है. कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बस, बाकी कुछ नहीं. 80 आना चाहिए, दूसरा कोई आंसर आ ही नहीं सकता. आ रहा हूँ उस पॉइंट. यू आर कंपेयरिंग दैट विद साइमल्टेनियस इक्वेशन. नो, राउंड ऑफ कर ही सकते हैं ना. सी, लास्ट टाइम वी डिड नॉट हैव 2913, तो बैलेंसिंग फिगर वाज 2912. इधर तो पहला ट्रांसफर है भाई, तो यहाँ पे तो राउंडिंग ऑफ हम लोग को फॉलो करना ही होगा. 2912.5 इज 2913. अच्छा, ये क्या मिला? टोटल ओवरहेड्स ऑफ एक्स एंड वाई. आपको ये पहले भी मिल चुका है. ₹1 का डिफरेंस ठीक है, वो तो पहले मेथड से तकलीफ दे रहा है. वो ₹1 कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड बाय 1000, 4000 एंड 2000 आवर्स. तो गाइस, कैन आई से वी हैव टोटल ओवरहेड्स विद अस? तो अगर टोटल ओवरहेड्स हमारे पास है तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ऐसा ही एक स्टेटमेंट ऑफ रीअपोर्शन में वापस आएगा. अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो अभी वापस मत बनाओ. इट्स ओके. सेम टेबल आएगा, सेम अलोकेशन होगा, तो बॉस एब्जॉर्प्शन रेट भी तो सेम ही निकलेगा एंड ऑफ द कैलकुलेशन. इसमें फर्क सिर्फ पहले पार्ट का है, टोटल ओवरहेड्स का. आपको ये समझा? एकदम क्लियर.
despite of 3 weird calculations, your final answer is same, because ultimately you are transferring every single rupee of every single service department. I thought so. You want me to switch it off? हाँ, एकदम लो पे कर दिया. पहले लो ही था वो, मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा था, तो मैंने हाई कर दिया. ओके, सो बेसिकली 3 मेथड्स. अब $1,000,000 क्वेश्चन जो कब से दिमाग में शायद घूम रहा होगा कि सर ये तीनों मेथड तो तूने सॉल्व कर दिया, रिवीजन है, तीनों पूछा है, एग्जाम में 3 तो आएगा नहीं, तो एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोला तो क्या करने का? सिंपल. ज़्यादा लोड लेने का ही नहीं इस उम्र में, क्योंकि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भरोसा नहीं है. देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आज ये 6 लाइन पे खत्म हुआ है, बट जस्ट इमेजिन अगर ये 4,75,000 के बदले 47 crores 50 lakhs होता ना, तो 4 लाइन और आते, क्योंकि ये 14,600 होता. अगर साइकिल का लिमिट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो चलो मैं तो बोलता हूं साइकिल का लिमिट भी दिया तो भी 3 से तो कम देंगे नहीं, और हम तो दूसरे में गलती भी करके आ सकते हैं. वी विल पिक अप परसेंटेज ऑफ x एंड विल अप्लाई ऑन द अमाउंट ऑफ y. ये पॉसिबल है, हम कुछ भी कर सकते हैं. और ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक स्टूडेंट. एग्जाम इज अ प्रेशर कुकर सिचुएशन बॉस. आज जो तुम लोग ने गलती नहीं की वो एग्जाम में जाके हो सकती है. आई डोंट वॉन्ट टू टेक द रिस्क. साइमल्टेनियस मेथड में आपको सिर्फ यू हैव टू बी जस्ट केयरफुल हियर. वो भी रिसीविंग डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, हाउ मच इज रिसीव्ड बाय y, 10% ऑफ x, एंड हाउ मच इज रिसीव्ड बाय x, 5% ऑफ y. उसके बाद अगर चाहोगे तो भी गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सिंपल पार्ट है. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का ना मुझे डर क्या लगता है मालूम है? यू मे पिक अप एक्सपेंसेस ऑफ x एंड यू मे अप्लाई परसेंटेज ऑफ y. और ये पॉसिबल है. 3 साइकिल में 3 साइकिल तक भी जाने की जरूरत, दूसरे में ही गलती हो सकती है अपनी. 3 साइकिल से कम वो लोग मांगेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है तुम लोग गलत कहां पे जा सकते हैं. और अगर साइकिल उन्होंने नहीं मांगे तो हमको चलाते रहना पड़ेगा वो, जब तक पूरा सर्विस डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं होता. इतना सब कुछ करने से अच्छा 10 लाइन में आंसर आएगा. ये जो 10 लाइन लिखे उतने ही होंगे. सो मैं तुम लोग को फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देता हूं यहां पे, या मैं ग्रुप पे डाल दूं, वो बेटर रहेगा. इधर लिखवाने से अच्छा मैं ग्रुप पे डाल देता हूं. कम्युनिटी पे हो तुम लोग? कम्युनिटी पे हो ना, तो सारी थियरी के पॉइंट्स में ग्रुप पे डाल देता हूं. पहला पॉइंट ये, व्हाई डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इज नॉट रिकॉर्डेड. डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? हमको ओवरहेड चाहिए, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं. नेक्स्ट, अदर ओवरहेड्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो टाइम इज द बेस. टाइम क्या दिया था इसमें? मशीन आवर्स. अगर इनडायरेक्ट लेबर होता तो लेबर आवर्स लेते, और अगर लेबर आवर्स मशीन आवर्स दोनों नहीं है तो लेबर कॉस्ट ले लो, क्योंकि बाकी और कुछ भी आवर्स के हिसाब से नहीं चार्ज होता. ना मटेरियल आवर्स के हिसाब से चार्ज होता है, ना और कुछ आवर्स के हिसाब से चार्ज होता है. तो लेबर इज द मोस्ट लॉजिकल बेस, लेकिन दैट इज अ लास्ट रिसॉर्ट. फर्स्ट प्रायोरिटी अदर ओवरहेड्स मशीन आवर्स, लेबर रिलेटेड एक्सपेंसेस लेबर आवर्स, और अगर आवर्स नहीं है तो लेबर कॉस्ट. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पावर की वर्किंग नोट. यू कैनॉट गो फॉर आवरली कैलकुलेशन when you are going to split total cost. So it has to be product of 2. लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया होता ना टोटल हॉर्स पावर यूज्ड फॉर मशीन्स, तो फिर डायरेक्टली रेशो उठा लेते. इफ दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड टोटल, इट इज नॉट टोटल. क्लियर? और मेथड कौन सी फॉलो करोगे? हमेशा, नेवर चेंज दैट. अरे इज दिस क्लियर? चलो, ये आपका कौन सा मेथड था? रेसिप्रोकल मेथड. अब ना 2 अजीबोगरीब मेथड्स भी है. एक स्टेप लैडर मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड. वो भी एक ही क्वेश्चन में कवर कर दूंगा मैं. 17, क्वेश्चन नंबर 17. अच्छा, ऑनलाइन पीपल, आर यू गाइस क्लियर विथ एवरीथिंग? जो भी आपके डाउट्स से सब सॉल्व हो गए?
दोनों चालू है, बंद तो किया ही नहीं मैंने कभी मैंने तो सिर्फ फैन कम कर दिया। ऑटो को कर दो। अच्छा ऐसा है। फर्स्ट वाले लेवल ऑटो। ऑटो पे कर दिया। इधर ही फैन कम इनसाइड। टीचर्स को ज़्यादा चिल्लर मिलती है। हम लोग में गर्मी ज्यादा है इधर पढ़ाने का, बाकी और बच्चे तो आराम से ठंडे बैठे इधर नहीं ठीक है, कर लेते कुछ, नहीं तो वो लेके आऊंगा मैं फैन, आजकल मिलता है ना अमेजोन पे क्या क्या आइटम निकले। दैट इज अगेन सी एनीथिंग कैन बी सोल्ड, एनीथिंग कैन बी सोल्ड। वो ऐसा रहा ना गले में डालने वाला, तो गले में डाल के ऐसे इधर घूमता रहता है। और बैटरी वाला फैन है तो चार्जेबल बैटरी लाया तो वो भी कॉस्ट इफेक्टिव है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 17। Again, this is reapportionment. Again, we are going for secondary distribution, but by using old methods. Deccan Manufacturing Limited have 3 departments which are regarded as production departments. Service department costs are distributed among those production department using step ladder method. Step ladder method is also known as step down method. Ladder हो, down हो, step पे ध्यान देने का। Estimation of factory overhead cost to be incurred by each department in the forthcoming year is as follows. Data required for distribution is also shown in the department. अब ध्यान से देखना, आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑलरेडी allocate करके दिए, इसका मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज डन और येट टू बी डन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज डन, आपको डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स दिख रहा है, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज डन। अगर कॉमन एक्सपेंसेस दिखते तो हमको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स, देन यू हैव बेसिस, लेबर आवर्स, एम्प्लॉइज, एरिया। ओके, the overhead cost of 4 service department are distributed in the same order P, Q, R and S. मतलब boss, there are 3 production departments and there are 4 service departments. So how many total departments you have? 7. So how many absorption rates will be possible? I'll repeat. How many production departments you have? How many service departments you have? So how many total departments you have? 7. So how many absorption rates are possible? 3. Because PQRS cannot have absorption rates. Fantastic. 3. Very good. Well done, जीते। बेसिस दिया हुआ है इन लोगों ने। P के लिए बेस क्या है? P के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, R के लिए इंटरव्यू में जाओगे तो क्या करोगे तुम लोग? किसका? हाँ, पढ़ते क्वेश्चन पढ़ते शायद समझ में आ जाए कुछ, क्या फायदा है। एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप जाने दो। किसका रिवीजन? मेरा रिवीजन थोड़ी चल रहा है, तुम लोग का रिवीजन। रुको जरा एक मिनट। P के लिए बेस क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। R पूछा था मैंने, और Q एंड S दोनों के लिए लेबर। मतलब यहाँ पे बेसिस भी दे दिया है, Q दिया है, विल डिस्कस इट आउट। पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स टू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। मतलब मुझे P, Q, R, S की ओवरहेड को रीअपोर्शन करके ABC में डालना है, सॉरी XYZ में डालना है। कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर। खुल्लम खुल्ला पूछ लिया, एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। अरे तो इसका मतलब टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड किससे करोगे? ये कौन सी मेथड मांगी थी? स्टेप लैडर। लास्ट पार्ट, सॉल्व 1 and 2 बाय डायरेक्ट मेथड। सेम डेटा, 2 क्वेश्चंस, रिवीजन डन। सिंपल। डिपार्टमेंट्स कितने? 7। प्राइमरी या सेकेंडरी? नहीं, प्रोडक्शन सर्विस नहीं पूछा मैंने। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है? तो 7+1 वाला फॉर्मेट आएगा, करेक्ट? बाकी ये किसके लिए दिया है, अभी पता चल गया होगा। P के लिए आप
एम्प्लॉयज यूज करोगे, आर के लिए आप एरिया यूज करोगे, क्यू एन एस के लिए आप लेबर यूज करोगे। समझा? चलिए धीरे धीरे हल्लू हल्लू फॉर्मेट रेडी करो। 7 डिपार्टमेंट्स है, this is your statement of reapportionment, which is also known as secondary distribution. Which method are you following? Step ladder method. We'll first answer 1 and 2. Step ladder method. X, Y, Z, P, Q, R, S. X, Y, Z, P, Q, R, S. Overage. 1,93,000. 60. 4,000. 83,000. 45,000. 75,000. 1,05,000 and 30,000. These are the 7 cost structures, 7 overhead structures already incurred, but I cannot charge PQRS to the customer directly. So we are going to reapportion them into XYZ. अच्छा, ऑर्डर इन्हीं लोगों ने दे दिए। इस क्वेश्चन में वैसे भी ऑर्डर हमेशा वो लोग दे देंगे। व्हाट इज द रेशियो फॉर पी? एक मिनट आराम से करते हैं। बेस क्या दिया है? इधर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की टोटल क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की टोटल है 460। अब इस 460 में से पी के 10 एम्प्लॉइज है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वो 10 एम्प्लॉइज है जो बाकी 450 को सर्विस दे रहे। अंडरस्टैंड? टोटल एम्प्लॉइज आर 460। आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज ऑफ 460, 10 एम्प्लॉइज आर ऑफ डिपार्टमेंट पी। दीज आर दोज 10 हु आर रेंडरिंग सर्विसेज टू अदर 450। अब इसका मतलब डिपार्टमेंट पी को सिर्फ 450 यूज कर रहे हैं, 460 नहीं। तो पी के एम्प्लॉइज छोड़ के रेशियो ले लेने का। सो दैट विल बी 100 is to 125 is to 80 is to 85 है क्या? 125 is to 85 is to नहीं, वो छोड़ दो। 50 is to 40 is to 50, बराबर ना? पी के छोड़ के सब लेना है। अरे आपको समझा? अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे 45,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। कांस्टेंट मल्टीप्लायर के डाल के दनादन आंसर निकाल लो। 10,000, 12,500, 8,500, 5,000, 4,000, one more 5,000। ये समझा? आगे बढ़े? अच्छा, क्यू में खुद का 75,000 तो है ही, और 5,000 आ गया, तो क्यू में हुआ कितना? 80 हुआ। 85 कैसे होगा? 80 होगा।
75,000 पहले से था उसका खुद का, and 5,000 burden he is bearing for using services of department P. चलो इसके लिए बेस क्या बोला है? डायरेक्ट लेबर आवर्स बोला है ना. सबसे पहली बात सुनो, पी के लेबर आवर्स मत लेना. सो 4:4 4:3:4:6:3. कुछ मिसिंग है? पी भी नहीं लिया, वही तो सुनना है. सुनो, स्टेप लैडर मेथड है. ध्यान से सुनो. स्टेप लैडर मेथड सेज once you allocate one department, do not go back to the same department again. It's over for you. एक बार जो मैंने डिपार्टमेंट allocate कर दिया तो फिर मैं दोबारा कंसिडर नहीं करता उसको, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ओवर. तो 4 3 7 11 17 3 20 20 40 4 चौक 16 16,000 12,000 16,000 24,000 12,000. देख लो रे बाबा. Once you allocate one department, do not go back to the same department again. Once you allocate one department, do not go back to the second department again. समझा? तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा होगा? लेकिन आर को जाने से पहले ना 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 आर को जाने से पहले पी एन क्यू में डैश लिख देना. So 1,05,000 plus 4, 1,09,000 plus 24, 1,33,000. 1.33 lakhs. $1.33 lakhs. अच्छा सुनो, इसके लिए बेस क्या होगा? लेकिन सुनो, एरिया इन स्क्वायर मीटर में पी का क्यू का आ ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर ओवर. आर का ले नहीं सकते क्योंकि उसी का काम चल रहा है. तो 30:15:15:10. 30:15:15:10. 70 19 57,000 28.5 and 19,000. समझाइए. अब सबसे अनलकी डिपार्टमेंट एस, जिसने सबका बर्डन झेला, लेकिन इसका बर्डन झेलने के लिए कोई नहीं है कि नहीं? इसके लिए बेस क्या है? डायरेक्ट लेबर. किसका लोगे? बस दैट्स इट, है ना अनलकी. पी ट्रांसफर एंटायर बर्डन टू क्यू आर एस, क्यू ट्रांसफर्ड इज बर्डन टू आर एस, आर ऑल्सो ट्रांसफर समथिंग टू एस. तो एस ने सबका झेला है और एक्स का बर्डन झेलने के लिए साला कोई नहीं, अपने जैसा ही है, जाने दो. तो कितना आ रहा है? 11 6 6 24 24,000 80,000 24,000. बोलिए. पी क्यू आर एस का टोटल मैं ले लेता हूँ, मैं बड़ा हूँ तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. हाँ नहीं यार, एल नहीं लगाना चाहिए था, के लग गए. कितना आ रहा है? 3 lakhs, 1.35 lakhs and 1.6 lakhs. इसको डिवाइड करोगे आर से, आर्स भी है ना आपके पास. 4,000 3,000 4,000, तो 75 45 40. ये आएगा आपका, ये आएंगे आपके एब्जॉर्प्शन रेट्स.
समझ में आया स्टेप लैडर मेथड? यू अंडरस्टूड व्हाट इज द इलॉजिकल पार्ट इन दिस? Internal transfer of PQRS is not completely done. P transfers entire amount to every department, but it's not bearing us the overhead of any service department at all. So you understood what the problem is? Repeated distribution में ऐसा नहीं होता. एक रुपए तक निचोड़ के रख दिया हमने पूरा डिपार्टमेंट. So that is why it is called as reciprocal method. Till the last rupee you do it. इसमें P खत्म तो खत्म. और स्टेप लैडर मेथड नाम क्यों रखा पता चला? क्या? स्टेप जैसा दिख रहा है. हाँ, दैट इज नॉट द रीजन. सुनो अभी बात. When you take steps, you don't go back to the same step again. We don't walk like this, no? Either we'll go forward or we'll go backwards. We don't take the same step again. That is what we are doing. One department is one step for me. P done, it's over. Move on. Stay happy with QRS. Q also done, move on. Dump Q, move on. RS is still with you. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन रेहान हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स ऑलरेडी दिए थे. इनफैक्ट वी स्टार्टेड विद दैट डिस्कशन. हमको डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स ऑलरेडी दिए थे. इसका मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पहले कोई आके करके गया है, तो हमने स्टार्ट किया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से. आपको ये समझ में आया? अब इसी डेटा को यूज करके डायरेक्ट मेथड समझा देता हूं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा व्हाई दीज टू मेथड्स आर नॉट फॉलोड दीज डेज. नाम क्या है मेथड का? बस जैसा स्टेप लैडर मेथड में स्टेप वाइज किया था ना, वैसे डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट होगा. मतलब देखो ध्यान से, कौन से XYZ है ना? XYZ ओके. सबसे पहले एज यूजुअल ओवरहेड लिख दो, वो तो करना ही होगा. 1,93,000. देन आई गेस 64,083,000. ये ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है. सुनो मेरी बात, इसके बाद आएगा P, उसके बाद आएगा Q, उसके बाद आएगा R, उसके बाद आएगा S. और रेशो के तौर पे आपको क्या लेना पता है? सिर्फ वो रेशो जो इन तीन से रिलेटेड है. मतलब 100:1, 125:85. खत्म. सुनो सुनो सुनो, पहले एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस, यू कैन कॉपी दिस लेटर. ध्यान दो. इसके लिए बेस क्या था? Q के लिए लेबर आवर्स. तो 4:2, 3:2. सर्विस डिपार्टमेंट तेल लेने गया. फिर उसके बाद 30:2, 15:2 एंड अगेन 4:2. आपको रियलाइज हो रहा है क्या कर रहा हूं मैं? मेरा 45,000 डायरेक्टली जाएगा, 75,000 डायरेक्टली जाएगा, 1,05,000 डायरेक्टली जाएगा, 30,000 भी डायरेक्टली जाएगा. दैट इज व्हाई द मेथड इज डायरेक्ट. नॉट इवन अ सिंगल रुपी ट्रांसफर टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट. ये सबसे पुराना मेथड है. सी एवरी सब्जेक्ट गेट्स इवॉल्व्ड. जैसे तुम लोग अकाउंट्स पहले ऐसा नहीं था, काफी डिसेंट हुआ करता था. अभी तो पूरा इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस हो गया, बट उसकी जरूरत है बिकॉज accounting standards were introduced because we wanted some parity in terms of in terms of visibility. So I wanted my books of accounts to be compared with other books of accounts and there should be a parity. तो मैं सही जगह पे ध्यान देके मैं कंपेयर कर सकूं. तो फाइनेंशियल डेटा इज नीडेड फॉर ऑल द डिसीजन मेकिंग एक्सटर्नली. सो उसका कवरेज ज्यादा है, तो उसको वो इवॉल्व ज्यादा हुआ. इसमें थोड़ा कम टाइम लगा. लोगों को ये रियलाइज होने में टाइम लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग नेग्लेक्टेड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी बिजनेस के लिए कॉस्ट है. लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग को ही निग्लेक्ट कर दिया. डायरेक्ट मेथड ध्यान दे क्यू डालने का. फिर लोगों ने सोचा कि नहीं यार ऐसा नहीं. P अगर QRS को सर्विस देता है, Q अगर PRS को सर्विस देता है, R अगर PQS को सर्विस देता है, S अगर PQR को सर्विस देता है, तो दे शुड बेयर द बर्डन. देन दे वेंट for this step ladder.
गलती तो उसमें भी थी. हाँ. देन फाइनली दे केम आउट विथ रेसिप्रोकल मेथड. और अब तो कंप्यूटर सिस्टम है, तो तुम लोग के 5 डिपार्टमेंट हो गए, तो भी कंप्यूटर पे तुम लोग ने एक बार डेटा डाल दिया तो सारे एक्सपेंसेस का ओवरहेड्स आ जाएगा. हम नहीं कर पाएंगे मैन्युअली, कंप्यूटर तो कर ही सकता है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब ये आप स्टेटमेंट कंप्लीट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा आपके ओवरहेड की टोटल अलग होगी और एब्जॉर्प्शन रेट 2 डेसिमल पे निकालना वो भी अलग होंगे. ऐसा हमारे साथ प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं हुआ था. 3 वियर्डली डिफरेंट मेथड्स हमने फॉलो किए, पर एब्जॉर्प्शन रेट नॉट इवन डेसिमल में चेंज था. नॉट इवन डेसिमल वाज डिफरेंट. 848.18 तो 180 था तीनों कैलकुलेशन में. बट हियर इट विल बी डिफरेंट बिकॉज देयर इज नो लॉजिक. समझा? तो पहले ये खत्म करो, टोटल ओवरहेड्स निकालो. टोटल ओवरहेड्स निकालने के बाद उसको 1000 नहीं 4000 3000 4000 से डिवाइड करो. आपको 2 डेसिमल तक लेना है एब्जॉर्प्शन रेट. इसका कितना 74.99 45.67 39.94 but not 75 45 and 40. सी नहीं कर सकते ना, क्योंकि रेट है. सपोज आप 10,000 घंटा काम करवाते हो और आपने 74.99 नहीं है, वो कुछ और होना चाहिए. 54 आया 54. कल देखो मैं समझाता हूँ. मैंने 10,000 घंटे का प्रोजेक्ट लिया. 74.54 के हिसाब से कितनी होती है कॉस्ट? 400. नहीं रे 74,54,000 आनी चाहिए ना, बराबर ना? 2 zeros. हाँ, 1 zero कम आया. बराबर. अगर 75 मारते हो आप, यू विल एंड अप चार्जिंग मोर. डिफरेंस कितना है? 4,600. और एग्जाम में कस्टमर बाद में रे, एग्जाम में अमाउंट में डिफरेंस मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट. रेट में रेट सम एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई लेटर ऑन शुड नॉट बी राउंडेड ऑफ. हम लोग प्रोसेस में भी यही सीखते हैं. अमाउंट चलेगा ना, बिकॉज अमाउंट को तू डिवाइड करके 4000 से डिवाइड करके रेट निकाला है, पर रेट मल्टीप्लाई करेगा. सी आई टेल यू, ये डिफरेंस कितना था आपका 4600, राइट? मैं आपको इसका भी लॉजिक बताता हूं. दोनों का डिफरेंस कितना है? 75 माइनस 74.54. It was hardly 0.46, right? Hardly 0.46, but that mistake got repeated 10,000 times, which is giving you 4,600 difference. So it might be 0.46 per unit, but if I'm producing 10,000 units, your mistake, rounding off error will get repeated 10,000 times. That is why it need not be rounded off. It should not be rounded off. आपका ये समझा क्लियरली? 100%. इनका रेट सेम हो ही नहीं सकता. इनफैक्ट दैट इज द रीजन व्हाई दे आर इलॉजिकल. ये मतलब इसमें खाली लॉजिक है, मतलब इसमें मतलब मतलब बोलते हैं ना कि आसपास रेट आए कि मतलब एकदम अलग भी आ सकता है. वो आपने समय सब में इसलिए सेम आ रहा है रेट, मतलब नहीं अलग ही आएगा. कोई भी समझ लो, मेथड चेंज होगी तो रेट भी अलग आएगा. और रेसिप्रोकल में एग्जैक्टली सेम. देखना अपना 3 वियर्ड कैलकुलेशन करने के बाद भी अपना डेसिमल भी नहीं हिला है. डेसिमल भी नहीं हिला. दैट इज व्हाई दोस 3 मेथड्स आर रिकमेंडेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एंड नोबडी फॉलोज दिस. आई होप दिस इज क्लियर.